Dear students, in this educational video, we are going to study about the poem My Heaven, written by Rabindranath Tagore. ये माई हेवन जो पोएम है ये गीतांजलि जो कि एक फेमस बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, उसमें से ये पोएम ली गई है। और यहाँ पर पोएट ने क्वालिटीज़ ऑफ हेवन, स्वर्ग की विशेषताएं, कैसा है वह स्थान जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार हम देखेंगे स्वर्ग की विशेषताएं। द क्वालिटीज़ ऑफ अ प्लेस लाइक हेवन। लुक एट द फर्स्ट लाइन। स्वर्ग कैसा स्थान है, ये यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the mind is without fear, where जहाँ पर the place where people live a life without fear, जहाँ पर वह स्थान स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा है, जहाँ पर लोग बिना भय के, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर ऊंचा करके जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं, जहाँ पर लोगों को अपमानित नहीं होना पड़ता, जहाँ पर लोग भयभीत नहीं हैं। द प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव विदाउट फियर and they feel respected, that place is a place like heaven. Where knowledge is free, यहाँ पर where knowledge is free, free का मतलब मुफ्त ऐसा नहीं है, ये ना समझें। यहाँ पर free का मतलब है available for all. A place where knowledge यानी education is available for all children, for everyone equally, where there are equal opportunities for everyone, for every child to get education, where nobody is denied education, is a place like heaven. जहाँ पर हर बच्चे के लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ पर every child can get education, जहाँ पर हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जहाँ पर शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध है, वो स्थान is like heaven. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the world means people, जहाँ पर लोग has not been broken up, जहाँ पर लोग टुकड़ों में बटे हुए नहीं हैं, into fragments means into pieces, टुकड़ों में, जहाँ पर समाज टुकड़ों में बांटा हुआ नहीं है, because of narrow domestic walls, because of narrow mentality, because of छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, जैसे भाषा, रंग, धर्म, जाति, भौगोलिक परिस्थितियाँ इत्यादि के आधार पर, जहाँ पर लोग विभाजित नहीं हैं, बल्कि एक साथ इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक साथ मिल करके, where people are united and live a life of togetherness, that place is a place like heaven. जहाँ पर लोग बटे हुए नहीं हैं नैरो मेंटालिटी की वजह से, और सभी मिल करके चुनौतियों का सामना करते हैं, जहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं, where people are united, where people are not divided, जहाँ पर लोग बटे हुए नहीं हैं, बल्कि
जहाँ पर लोग यूनाइटेड हैं, दैट प्लेस इज़ अ प्लेस लाइक हेवन। Where words come out from the depth of truth, जहाँ पर शब्द come out बाहर आते हैं from the depth of truth, सच्चाई की गहराई से, जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से बाहर निकलते हैं, मतलब where all people speak the truth, where truthful people live, where people do not tell lies, जहाँ पर सभी लोग सच बोलते हैं, जहाँ पर लोग झूठ नहीं बोलते हैं, where people do not tell lies, where all people speak the truth as it is, that place is a place like heaven. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. अगली लाइन है where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where जहाँ पर tireless striving अथक परिश्रम करने वाला व्यक्ति stretches its arms towards perfection, अपने हाथों को पूर्णता तक पहुंचाता है। Perfection means पूर्णता, perfection means success, जहाँ पर a place where every hard working person gets success, जहाँ पर हर कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। Where all hard working people get success, where hard working people are not denied success, जहाँ पर कठिन परिश्रम करने वाले लोग सफलता से वंचित नहीं होते, पूर्णता से वंचित नहीं होते, जहाँ पर सभी परिश्रमी व्यक्तियों को सफलता मिल जाती है, that place is a place like heaven. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. ये स्वर्ग, अगली लाइन, स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्क की स्वच्छ जलधारा, तर्क रूपी स्वच्छ जलधारा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता खो नहीं देती है, into the dreary desert sand of dead habit. dreary means भयानक, desert का मतलब मरुस्थल, sand का मतलब आप समझते हैं बालू, रेत, of dead habit, जहाँ पर तर्क की स्वच्छ जलधारा, डेड हैबिट यानी बैड हैबिट्स, बैड प्रैक्टिसेस, कुरीतियाँ, बुराइयाँ, खराब आदतों के भयानक मरुस्थल में तर्क की स्वच्छ जलधारा जहाँ खो नहीं जाती है, यानी जहाँ पर लोग ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न, जहाँ पर लोग तर्क के आधार पर चेंज देयर हैबिट्स, चेंज customs and traditions, change themselves, where all people on the basis of reason change their habits, change themselves, that place is a place like heaven. Where reason works, जहाँ पर तर्क काम करता है, जहाँ लोग सोच विचार करते हैं, तर्क करते हैं और बुरी आदतों को छोड़ते हैं और अच्छी आदतें डेवलप करते हैं, सीख लेते हैं, that place where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहाँ पर लोग on the basis of reason, जहाँ पर लोग तर्क के आधार पर अपनी बुराइयों को, बुरी आदतों को, कुरीतियों को बदल देते हैं और नई आदतें, नई परंपराएं, नई चीज़ें प्रारंभ कर देते हैं, जहाँ पर रीजनिंग, जहाँ पर तर्क काम करता है, लोग सोच विचार करते हैं और परिवर्तन लाते हैं, दैट प्लेस इज़ अ प्लेस लाइक हेवन. और where the mind is led forward by thee, जहाँ पर मस्तिष्क को भगवान द्वारा, गॉड द्वारा, by thee means by you, यानी by God, जहाँ पर लोग भगवान से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, where people are guided and where people are led, where people get inspiration from God,
into ever widening thought and action, where people get inspiration from God and move towards ever widening thought and action, greater thoughts and better actions, where people move towards better thoughts and better actions, getting inspiration from God, जहाँ पर लोग भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके और भी अच्छे विचार और भी अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होते हैं, that place is a place like heaven. Into that heaven of freedom, my father let my country awake. Rabindranath Tagore, the great poet says, ऐसे ही स्वतंत्रता के स्वर्ग में my father, my God, मेरे देशवासियों की आंखें खोलें। अभी वे सभी सो रहे हैं और जब उनकी आंख खुले तो वे अपने आप को स्वतंत्रता के ऐसे ही स्वर्ग में पाएं। ये प्रेयर है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आप लोग एक एक पंक्तियाँ ध्यान से देखेंगे और इसके बाद इसे समझें, और इफ़ यू लाइक इट, share and subscribe. Thank you.